خوش آمدید، شلوم ایوری ون۔ میں آپ کے ساتھ ایوانجلسٹ کرن جارج نجات چینل سے، اور آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے کہ کیا خداوند راست باز کو جانتا ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ جو تعلق باغ عدن میں ٹوٹ گیا تھا خدا کا اور انسان کا، یہ دوبارہ سے کس طرح قائم ہوا۔ ہاللیلویا۔ یسایہ 43 باب اور اس کی 11 آیت کو پڑھیں گے۔ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے کہ میں یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ یہاں پر خداوند بات کرتا ہے، یسایہ کی معرفت خداوند ہم سے کلام کرتا ہے کہ میں یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ پیدائش 3 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خداوند نے کہا کہ تم نہ تو اسے کھانا نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ یہاں پر خداوند نے آدم اور حوا سے کہا کہ جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کی پھل کی بابت خداوند نے کہا کہ نہ تو تم اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ آج ہم باغ عدن میں دیکھیں گے کہ خداوند نے باغ عدن میں کون کون سی برکتیں انسان کے لیے رکھی تھی۔ باغ عدن میں کوئی تکلیف یا دکھ، مشقت، بیماری، غربت یا خدا سے علیحدگی نہ تھی۔ آدم اور حوا تمام چیزیں اپنے اوپر اور بنی ہوئی انسان کے اوپر خود اپنی نافرمانی کی وجہ سے لے کر آئے، اور انسان کے گرنے سے خداوند ہمیشہ سے بنی ہوئی انسان کی واپسی چاہتا رہا۔ خدا ہمیشہ ہی سے جو تعلق باغ عدن میں ٹوٹ گیا تھا دوبارہ سے قائم کرنا چاہتا تھا۔ خداوند نے بنی ہوئی انسان کو اپنی طرف لانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے کہ یہوہ خدا نے کون سا منصوبہ بنایا اور وہ ہمیں بچاتا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اور بائبل مقدس میں اگر ہم دوسرا کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 21 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں سے ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے۔ اور یہوہ خدا جو اس نے پلان کیا، جو اس نے منصوبہ کیا اور جس کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جو بے برہ تھا، جو گناہ سے واقف نہ تھا، اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں سے ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے۔ اور آج ہم سیکھیں گے کہ کیا خدا راست باز کو جانتا ہے۔ ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے۔ ایوب پہلا باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی غور کیا؟ یہاں پر خداوند شیطان سے، ابلیس سے بات کرتا ہے، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر غور کیا؟ اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھیں گے تو اس کے اندر ہمیں ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ ملتا ہے
कि खुदा उससे सवाल करता है कि क्या तूने मेरे बंदा के हाल पर गौर किया। और खुदावंद उसकी रास्तबाजी के बारे में बताता है, क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदावंद से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। यहाँ पर खुदावंद अपने बंदा अय्यूब के बारे में बात करता है कि वो रास्तबाज है, वो खुदावंद से डरता है और वो बदी से दूर रहता है। और इस हवाले से हमें पता चलता है कि खुदावंद रास्तबाज को जानता है। हालेलुया। और इसी तरह अगर हम बदार 6 बाब और उसकी 9 आयत को देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि नूह का निसबनामा ये है, नूह मर्द रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में से बेऐब था और नूह खुदावन के साथ चलता रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा खुदा जो है नूह की रास्तबाजी को भी जानता है और खुदावन कहता है कि वो अपने जमाना के लोगों में से बेऐब और नूह खुदावन के साथ साथ चलता रहा। इन हवालों से हमें पता चलता है कि खुदावंद रास्तबाज को जानता है। हालेलुया। और इसी तरह आज हम फलीसी और मसूल लेने वाले की तफसील को भी देखेंगे। लूका 18 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है कि फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे। यहाँ पर जो फलीसी है वो अपने आप पर भरोसा रखते थे और वो कहते थे कि हम रास्तबाज हैं और दूसरों को नाचीज जानते थे। और इसी तरह अगर हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए और फलीसी खड़ा होकर जी में यूं दुआ करने लगा, अपने दिल में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदावन तेरा शुक्र करता हूं कि मैं बाकी आदमियों की तरह जुल्म और बेइंसाफ और जनाकार या मसूल लेने वाले की मानिद नहीं हूं। और बल्कि वो क्या कहता है कि मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता हूं और मैं अपनी सारी आमदनी की दयकी देता हूं। यहाँ पर मसूल लेने वाला जो अपने आप को रास्तबाज कहता है वो कहता है कि मैं इस मसूल लेने वाले की तरह नहीं, मैं रोजे रखता हूं, मैं शुक्र गुजारी करता हूं और मैं दयकी देता हूं। लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहती हूं, जब हम अपने आप पर फख्र करते हैं कि हम रास्तबाज हैं, हम शुक्रगुजारियां करवाते हैं, हम रोजे रखते हैं और हम दयकी देते हैं और यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी शुक्रगुजारियां, हमारे रोजे, हमारे दयकी हमको खुदा की नजर में रास्तबाज नहीं ठहराती। और वो जो मसूल लेने वाला शख्स था वो दूर खड़ा होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाकर देखे, लेकिन वो छाती पीट पीट कर कहने लगा, ऐ खुदावन मुझ गुनाहगार पर रहम कर। और ये अल्फाज जो है ये खाकसारी के अल्फाज है। जब वो खाकसार हो गया,
जब उसने खुदा के नजर में अपने आप को छोटा कर लिया और उसने क्या कहा कि मुझ गुनाहगार पर रहम कर। और खुदावन के जिंदा कलाम में लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया। और यहाँ से हमें पता चलता है कि जब हम खाकसारी के साथ अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो फिर खुदावन हमें रास्तबाज देखता है। जिस तरह खुदावन ने उस मसूल लेने वाले को देखा और खुदावन ने क्या कहा कि ये शख्स, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये शख्स रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे कि जब हम शुक्रगुजारियां करते हैं, जब हम दुआ करते हैं, जब हम रोजे रखते हैं, तो हम खुदा की नजर में रास्तबाज नहीं ठहरते। लेकिन जब हम अयूब की तरह डरते हैं, बदी से दूर रहते हैं, और जिस तरह नूह जो अपने लोगों में बेऐब था और रास्तबाज था, और जिस तरह ये मसूल लेने वाला जो खाकसार होके अपने गुनाहों का इकरार करके खुदा के पास गया, तो खुदावन के कलाम में लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये शख्स जो है रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया। और आज हमने क्या सीखा कि हम जब खाकसार हो जाए, जब हम बदी से दूर हो जाए और जब हमारे अंदर खुदा का डर होगा, तब हम खुदा की नजर में रास्तबाज ठहरेंगे। और यहोवा खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेजा कि हम उसमें से होकर खुदा की रास्तबाजी पर जाए। खुदावन आप सबसे प्यार करता है, वो आप सबको रिहाई देना चाहता है, आजाद करना चाहता है। और आज हमने बाइबल मुकद्दस में से सीखा कि हम रास्तबाज किस तरह बन सकते हैं। कलाम की आयतों को हमने सुना और इसमें से सीखा कि जब हमारे अंदर खुदा का डर होगा, जब हमारे अंदर खुदा का खौफ होगा, और जब हम बदी से दूर रहेंगे, और जब हम यीशु में से होकर खुदा के पास जाएंगे, तो फिर खुदावंद हमें रास्तबाज देखेगा। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो। गॉड ब्लेस यू।